A very good evening, guys. Happy New Year, everyone. Welcome back to this post-market analysis video where we will discuss about the market outlook for 3rd January 2022. So first of all, we will discuss about Friday's data and the conclusion of the data. On the basis of that, I will guide you about the market scenarios. So tomorrow will be the first trading session of the new year, that is 2022. Definitely, we all have some goals for this year and we all want to achieve it. So today in the morning, I have sent one message on our free Telegram channel. Please read out this message and understand the importance of this message because it will really help you in defining your goal. And when you define your goal properly, it makes more probability of achieving that goal. Okay, so this one is a psychological message for you all, and I hope that you all will read this message and understand the importance. So now let me discuss about the data and let me read out it for you. Okay, so FI's net positions have increased in stock futures and index futures. Their net positions in index calls and index puts have been reduced. So FIs have went long on the stock futures and index futures, which tells us about their bullish stance. Okay, they have decreased their positions in index calls and index puts, which will be due to the weekend. Okay, and clients have sold index calls and added index puts, which defines their bearish stance. So FIs have been bullish, clients have been bearish, and that leads us to the conclusion that the data is bullish. Okay, so now I have told you one goal of this month, and our new goal of this month is to hit 1,000 plus subscribers on our YouTube. My last goal was achieved with the help of everyone here, and I would like to thank each and every one of you because I was able to achieve 500 plus subscribers on my YouTube channel in just 10 days with the help of you all. Okay, now it is the time to achieve our next goal, that is 1,000 plus subscribers on our YouTube channel. So please help me achieve that. Now, one more thing that I would like to discuss, that was I told you one more thing, and that was yesterday I explained you bull trap setup. Now in my next video, I will explain you a bear trap setup. So in my Thursday's video, I explained you about what is a bull trap setup. And in this video, I'm going to cover what is a bear trap setup. So hope it will be a good learning experience for you all. I also have not sent any charts for my last PTST view stock, that was all sec technology. So please go and check out the charts of all sec technologies. It is a wonderful monthly breakout and I hope that it will give you wonderful returns. So this was about our free Telegram channel. I hope that I have read out all the important messages for you all. And once again, I have made you updated regarding all the updates that we have shared there. Okay. So now let's move what we are here for. And let me first discuss about the beer trap setup that I told you to explain on Friday. Okay. So just like my Thursday's video where I explained you about the bull trap setup, in this video I will be explaining about the bear trap setup. एंड मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट प्रीवियस डे रेंज के बाहर खुलता है, तो ये प्रीवियस डे रेंज थी 30 दिसंबर एंड मार्केट इसके बाहर ओपन हुआ. अब नाउ लेट अस सी कि मार्केट बाहर ओपन होके क्या प्राइस एक्शन दिखाता है. ठीक है, नाउ फर्स्ट कैंडल आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज. ठीक है, पहली कैंडल जो खुली है आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज, इट इज अ रेड कैंडल. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, इसने प्रीवियस डे हाई को रीटेस्ट किया. वहां पे रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल वाज अ ग्रीन कैंडल व्हिच गिव अ ब्रेकआउट ऑफ द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल व्हिच वाज रेड. सो क्लियरली दिस वाज अ बियर ट्रैप सेटअप जिसमें बियर्स ट्रैप हो गए थे इंस्टेंटली जब ये ब्रेकआउट आया था. नाउ दो केसेस थे जहां पे एंट्रीज बनती थी. आई मतलब मैंने जब ये सेटअप डिस्कवर किया था इट वाज अराउंड हियर. ठीक है, मैंने जब ये सेटअप डिस्कवर किया था ये यहाँ पे था एंड यहाँ पे नहीं था. मैंने यहाँ पे सेटअप को डिस्कवर नहीं किया था उस दिन. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर किसी ने इस सेटअप में एंट्री ली थी यहाँ पे, तो उसका एसएल इस कैंडल के लो पे होना चाहिए था जिसने प्रीवियस डे हाई को रीटेस्ट किया था. ठीक है,
एंड उसका एसएल हिट नहीं होता एंड लेटर ऑन ही वुड बी इन प्रॉफिट्स, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट बन जाता। अब अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली जब एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आया था, 2353 पे कैंडल क्लोज हुई थी, देन यू कुड हैव डन दैट कि आप इस कैंडल के लो के नीचे एसएल लगा सकते थे, जो ब्रेकआउट के जस्ट एक नीचे कैंडल थी, वहां पे एक एसएल लगा सकते थे। तो यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस बन गए एसएल के। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो एसएल आपका इसके नीचे होता, बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एसएल इसके नीचे होगा, ठीक है, जस्ट बिलो दिस। एंड इजीली आप कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे स्कैल्प बना पाते इजीली से। 17 to 18 पॉइंट्स अवेलेबल थे यहाँ पे एंड क्विकली ये प्रॉफिट बन जाते, सो इट वाज आल्सो अ वेरी गुड सेटअप। सो दिस इज अबाउट अ बियर ट्रैप सेटअप, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड होती है, आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज मार्केट खुलता है, वो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, एंड buyers are able to cross the high of first red candle which has opened outside the range and it has able to close above that level। तो जैसे ही इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, यहाँ भी एंट्री ले सकते थे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, एंड लेटर ऑन जब ये कैंडल क्लोज हुई थी इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर, देन ऑल्सो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। तो what I want to say is कि I did not discover this setup here, instead I discovered here। तो अगर मैं एंट्री लेता तो मैं ये एसएल लेता, और अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो मेरा एसएल ये होता। So in both the cases, I have guided you how I would have traded, and I think that this will help you in your personal trading as well. Now let us move on the charts of Nifty and Bank Nifty. Okay, अब मैं एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहता हूँ निफ्टी पे, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। नाउ एज वी हैव एंटर्ड इनटू 2022, मैं आपको एक चीज के बारे में गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2020 में ब्रेकआउट आया था निफ्टी में, ठीक है, ऑन अ मंथली चार्ट। अब जब भी ब्रेकआउट आता है, आई ऑलवेज टेल यू कि आप हमेशा 9 EMA से ट्रेल कर सकते हो अपनी ट्रेड को। तो अगर कोई मंथली चार्ट पे इस ट्रेड को ट्रेल कर रहा है, मतलब इफ somebody हैज टेकन और बॉट निफ्टी फ्यूचर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ मंथली चार्ट, अगर किसी ने मंथली चार्ट पे ट्रेड करके निफ्टी फ्यूचर्स बाय किए थे एंड ही और शी इज ट्रेलिंग देयर ट्रेड्स, देन अभी भी एसएल टीएसएल हिट नहीं हुआ इस ट्रेड पे, ठीक है, एंड स्टिल 9 EMA प्रोटेक्ट कर रही है निफ्टी, निफ्टी को ट्रेल करने में हेल्प कर रही है उस बंदे की जिसने मंथली चार्ट के बेसिस पे ये ब्रेकआउट ट्रेड लिया होगा, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि स्टिल ये जो मंथली चार्ट पे ये जो ईएमए है, इट इज अराउंड 16,419 व्हिच हैपेंस टू बी द recent low on the charts of Nifty, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड जब भी मार्केट ने पिछले साल जब ये 2020 में ब्रेकआउट हुआ था, उस टाइम से नॉट इवन अ सिंगल टाइम मार्केट ने जब भी एक रेड कैंडल बनाई तो उसके बाद अगली रेड कैंडल में उसका लो तोड़ के नीचे बंद हुआ मार्केट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लो था कैंडल का, इसके नीचे अपन बंद नहीं हुए, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनाई जिसके नीचे गए पर बंद नहीं हुए, एंड अगेन इसके नीचे गए लेकिन बंद नहीं हुए। ऑल दिस इज अ साइन दैट वी आर स्टिल इनटू द बुल मार्केट, so we don't need to worry। what we have to do is follow the plan, we have to buy the dips and continue making money with this plan, okay। So now we have taken a support on the 9 EMA on the monthly charts of Nifty, and this is a very good support level for Nifty now, which is 16,400, okay। So now let us move on to the daily time frame of Nifty। वहां पे भी मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ, एंड द ऑब्जर्वेशंस आर मेड फ्रॉम EMAs ओनली, ओके। तो मैंने आपको बताया था निफ्टी 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, फिर 20 EMA के भी ऊपर ट्रेड करने लग गई थी निफ्टी। दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन आई थिंक थर्सडे ओनली, एंड फ्राइडे की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है बिकॉज इट इज अबव 50 EMA। तो जो शॉर्ट टर्म EMAs है उससे ऊपर ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड जो मिड टर्म EMA है दैट इज 50 EMA, जो अपने को 50 डेज का ट्रेंड बता रही है, दैट इज ऑल्सो टेकन आउट नाउ because Nifty has closed above the level of 50 EMA, and now things are looking better, things are looking positive,
एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट द डेटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अब जो डेटा है उसमें भी काफी सारे शॉर्ट्स कवर किए हैं बिग प्लेयर्स ने, एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट एवरी डिप इज नाउ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे कि कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले, I was telling you that every rise that comes in a market will be sold into. Now the thing has changed. अब जो भी dip आ रही है मार्केट में, it is getting bought into. And ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज की जो निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है, जस्ट सी दैट। पहले क्लोजिंग हमेशा डे लो के आसपास हो रही थी, एंड बहुत सारे दिन ऐसे थे चार्ट्स पे जहां पे अपन लो के आसपास क्लोज हो रहे थे, तो इट वाज गिविंग अ गुड चांस टू द बियर्स नेक्स्ट डे टू ब्रेक दैट लो एंड अगेन एक फॉल दे सके। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज की अगर अपन कोई डे लो बनाते भी हैं, वी आर नॉट एबल टू क्लोज एट दैट लेवल, एंड बुल्स फाइट बैक करते हैं और मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाके क्लोज कर रहे हैं। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी आर सीइंग कि अगले दिन फिर अपन जो पिछले दिन का हाई है वो जो भी बनता है वो तोड़ देते हैं। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज क्लोजिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली अगर अगले दिन फ्लैट खुलेगा मार्केट, अगले दिन गैप अप खुलेगा, तो पिछले दिन का हाई डेफिनेटली टूट जाएगा। एंड दिस इज व्हाई again on Friday market has given a very good closing. Now let us talk about what happened in the global market. सब न्यू ईयर बना रहे थे and nobody was focused कि क्या हुआ अमेरिकन मार्केट्स में. So let us see now कि global markets में क्या चल रहा है. So if I talk about global markets are also trading at their all-time highs. US 30, that is the Dow Jones Industrial Average, ये भी अपने all time highs के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. And as soon as this hurdle is taken out on US 30, definitely some more positivity will start to come in the global markets. ठीक है. If I talk about Nasdaq, तो Nasdaq ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर में, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट दिया, अगेन रिटेस्ट दिया, डबल बॉटम बनाया, अगेन इट इज ट्रेडिंग नियर इट्स ऑल टाइम हाइज लेवल. तो जैसे ही ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, ये इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, देन अगेन वी विल स्टार्ट टू सी सम मोर अप मूव इन US 100. So both the important American market, that is US 30 and US 100, are trading at their all time highs. तो all time highs के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं. As soon as ये high break होगा on a closing basis, we will again see some more positivity in the global market. So that is again a big positive factor coming in. ठीक है. Now let us talk about Bank Nifty. Bank Nifty बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. So please listen to me carefully. जो भी मैं Bank Nifty के आपको कंक्लूजन्स दे रहा हूँ, जो भी मैं सिनेरियोस बताने वाला हूँ, आई आई थिंक दैट दे विल वर्क डेफिनेटली. एंड आपकी बहुत सारी जो ट्रेडिंग प्लान बनाते हो आप लोग, जो भी आप सोचते हो, बहुत हेल्प करेगा ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. अब ये जो कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये 29 नवंबर 2021 की है. अब इस दिन का लो देखो मार्केट का 16,782. ठीक है, ये लो बनाया था अपन ने 29 नवंबर को. यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ. ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे भी मैं जाऊंगा एंड 29 नवंबर का जो लेवल है, जो कि मेरे हिसाब से ये है 29. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ. जो भी मार्केट्स में कुछ एक महीने में हुआ है, दैट इज दिसंबर में, मैं सिर्फ आपको वो दिखाऊंगा एंड व्हाई दैट हैज हैपेंड. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वो दिखाने वाला हूँ. अब ये जो लो बना था, इसका ब्रेकडाउन हुआ था 20 दिसंबर को. ठीक है, अपन ने 20 दिसंबर को ये जो रीसेंट लो बना था 16,782 का, इसको क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया था. ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल थिंग. अब एक चीज आपको पहले तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ, जब भी कोई कैंडल ब्रेक डाउन दे रही है और उसमें एक विक बन रही है, ऑलवेज वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल. अब यहाँ पे जो फॉलो अप कैंडल थी वो ऊपर चली गई, नीचे नहीं आई. नेक्स्ट डे कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई. दैट मींस वी डोंट हैव टू टेक दिस ब्रेकडाउन ट्रेड. यहाँ पे ये एक बार के लिए फेक ब्रेकडाउन हो गया एंड मार्केट्स क्लोज्ड अबव दिस लेवल. दिस वाज द सेकंड साइन कि मार्केट ने ये लो तोड़ा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, बट इट वाज अ फेक ब्रेकडाउन. ठीक है, दैट इज व्हाई मार्केट्स वर एबल टू क्लोज अबव दिस लेवल. और जैसे ही इस लेवल के अबव मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे इस दिन ये लो बन गया, ये मार्केट का एक लो बन गया. एंड आफ्टर दैट मार्केट हैव बीन डूइंग ग्रेट. ठीक है, मार्केट्स हैव बीन डूइंग ग्रेट आफ्टर दैट. अब बैंक निफ्टी में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ने जो लो 29 नवंबर को बनाया था ना, वो
फ्राइडे की क्लोजिंग से तोड़ा है, ठीक है। तो जस्ट नोटिस कि जो निफ्टी में हुआ ये क्लोजिंग, इसके ऊपर जैसे ही रिसेंट लो के ऊपर क्लोजिंग हुई तो निफ्टी एक अप ट्रेंड आया बहुत अच्छा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी ये क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने की है कि यहाँ पे भी अपन को ब्रेकआउट में एक विक देखने को मिली है। तो अगर ये कल इसका हाई तोड़ता है और ऊपर बंद हो जाता है, या मे बी कल एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बन जाती है चार्ट्स पे, देन वी विल स्टार्ट टू सी मनी फ्लो इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। और पिछले कुछ वीक से मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ये जो 34,000 का मार्क है बैंक निफ्टी पे, इट इज वेरी हार्ड टू गेट ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे अपन ब्रेकडाउन मुश्किल ही देखेंगे। द रीजन इज कि इट इज अ मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट, ठीक है। आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, ये लेवल ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, यहाँ पे काफी अच्छा accumulation हो रखा है। सो there's a very good chance, very good chance that we will keep this level protected. तो ये जो 34,000 का मार्क है, I hope that it will stay protected, and in the coming days we are going to see some good upside in the banks. Okay. अब बैंक्स के लिए मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको दे देता हूँ। आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दिस वीडियो जस्ट टू इंक्रीज योर कन्विक्शन, कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं वो आपके डायरेक्शन में जा रही है, तो यू आर, so that you are able to make big money on that. Okay. And agar if we are biased about the direction, if we know that markets are going to show some upside, definitely we should make big money on the view, ठीक है। That is why I'm giving you a lot of factors that are coming in, lot of चीजें जो मेरे पास, जो मैंने देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व की है चार्ट्स पे, आई एम शेयरिंग विद यू these observations, ताकि आप भी समझ पाए कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ, they are based on the observations that I have seen in the market. अब ऐसा यहाँ पे हुआ था 29 नवंबर के ऊपर, जैसे ही अपन क्लोज हुए, वी निफ्टी ने एक अच्छी अपसाइड दिखाई, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर इसका फॉलो अप आता है, देन डेफिनेटली इन द कमिंग डेज ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, या फिर कल ही ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगा, एंड वी विल सी सम वेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ इन बैंक निफ्टी। मतलब एक पॉजिटिविटी की शुरुआत यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकती है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है अपने मिड टर्म ट्रेंड के, ठीक है। एंड अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 9 ईएमए के ऊपर पहली बार यहाँ पे क्लोज हुई काफी दिनों बाद इस ब्रेकडाउन के। सो नाउ दिस इज अ साइन की जो भी 9 ईएमए से ट्रेल करते हैं अपनी ट्रेड को, जिसने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड ली थी, इसका फॉलो अप कभी नहीं आया और मार्केट उस लो को अपना सपोर्ट बना के ऊपर ही जा रहा है। तो नाउ दिस इज अ साइन की जिसने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करा था मार्केट को, he or she will be out, because उसका एसएल, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है 9 ईएमए के ऊपर क्लोज होने की वजह से, ठीक है। एंड जस्ट नियर इज द 20 ईएमए कमिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, इसके टॉप पे ही आपको एक 20 ईएमए की रेजिस्टेंस दिख रही है, एंड ये ट्रेंड लाइन 3 टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुकी। तो अगेन दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल सी रेजिस्टेंस। अब अगर ये लेवल एक बार में टूट जाता है, ठीक है। अब कल अपन ने हाई बनाया था 35,596 का बैंक निफ्टी पे, और यहाँ पे एक गैप था, तो मार्केट ने जस्ट उसके नीचे जो गैप था उसके बीच में यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अगर टुमारो वी आर एबल टू टेक आउट द लेवल ऑफ 20 ईएम, दैट इज 35,733, कल के दो सिनेरियोज में आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी अपना जो रीसेंट हाई है, दैट इज फ्राइडे को जो हाई बनाया है वो तोड़, ठीक है। वो तोड़ने के बाद इट विल टेक अ रेजिस्टेंस एट समवेयर अराउंड 35,740, 35,730, 35,750, यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। अगर दिस लेवल इज ब्रोकन, इफ दिस लेवल इज ब्रोकन, देन डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी में तो बाइंग की सोचनी है। अगर उसके बाद कोई डिप आ जाती है, डेफिनेटली यू हैव टू थिंक कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, और वी गो इनटू बैंक निफ्टी एंड अपन कॉल्स बाइंग की ट्रेड्स देखे कि अपन को कहाँ पे कॉल्स बाय करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 50 ईएमए लगाऊं, दैट इज कमिंग एट अराउंड 36,616, ठीक है। तो जो 50 ईएमए है, दैट इज कमिंग एट अराउंड 36,660। तो if we are able to take out the level of 20 EMA, definitely we will achieve the level of 50 EMA, ठीक है। एंड जैसे ही 50 EMA का लेवल अचीव होगा, फिर से एक रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी। अब नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग,
एंड द थिंग इज कि यहाँ पे जैसे 9 एंड 20 EMA ब्रेक हुई थी निफ्टी में, वी क्लियरली अचीव द लेवल ऑफ 50 EMA और निफ्टी 50 EMA के भी ऊपर ट्रेड करी. दैट मीन्स द मार्केट्स हैव स्ट्रेंथ. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू टेक द मिड टर्म लेवल. एंड अब बैंक निफ्टी की चांस है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस लो के ऊपर बंद हो चुकी है. अब अगर कल फॉलो अप आता है, विच विल कम बिकॉज द डेटा आई थिंक इज गुड, डेटा इज बुलिश, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है विच इज इंडिकेटेड बाय द SGX 17,360, या तो थोड़ा सा ऊपर खुल जाएगा, थोड़ा सा नीचे खुल जाएगा, और मे बी फ्लैट. ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बैंक निफ्टी अपना कल का हाई तोड़ेगी. एंड कल का हाई तोड़ने के बाद सीधा 20 EMA का जो लेवल है वो अचीव कर देगी. ठीक है, तो एक ट्रेड तो ये हो सकती है कल के लिए. एंड इफ वी आर एबल टू टेक आउट दिस लेवल ऑफ 20 EMA ऑन द क्लोजिंग बेसिस, then definitely we will achieve the target of 50 EMA in this week, which happens to be around 36,616. तो ऑलरेडी मैं आपको एक आइडिया अभी ही दे रहा हूँ कि अगर 20 EMA का लेवल टूटता है, देन 1000 पॉइंट्स तो मैं आपको बैंक निफ्टी पे बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगे इजीली. ठीक है, सो दिस विल बी द लेवल ऑफ 50 EMA जो इस कैंडल पे आ रहा है, ब्रेकडाउन कैंडल. तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सेलिंग की शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट. एंड यहीं पे 50 EMA है, एंड वी कैन अचीव दिस लेवल इजीली बिकॉज नाउ अपन रीसेंट लो के ऊपर है. रीसेंट लो के ऊपर है, दैट मीन्स कि अब अपन इस टारगेट तक इजीली आ सकते. ठीक है, तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर इंटरेस्टिंग, मच मोर इंटरेस्टिंग दैन निफ्टी. मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में थोड़ी कम अपसाइड भी आएगी इस वीक, दैट विल बी बिकॉज ऑफ बैंक्स. बैंक लीड करेंगे एंड बैंक्स ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे निफ्टी से. ठीक है, और ये आपको इस दिन की क्लोजिंग में भी दिख गया होगा. निफ्टी वॉज 0.87% अप, बट Bank Nifty was 1.19% up, and that is because of the money flow that is happening in banks right now. And उसी वजह से एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग भी अपन को बैंक निफ्टी में देखने को मिली. Now we are trading above the short term EMA level, that is 9 EMA. अब 20 EMA we can achieve tomorrow. अगर उसके ऊपर वी आर एबल टू क्लोज, तो अपन ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज हो जाएंगे और 20 EMA के ऊपर भी क्लोज जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प अस अचीव द टारगेट ऑफ 50 EMA इन दिस वीक. दैट हैपेंस टू बी अराउंड 36,616. So bank Nifty is looking much more positive than Nifty. Okay. And again Nifty की बात करें तो clearly Nifty has shown a very good closing. अगर कल अपना ये जो हाई बनाया था फ्राइडे को, ये तोड़ देती है निफ्टी, ठीक है, ये जो 17,400 का है ये टूट जाता है वहां पे, देन वी विल सी easily the target of 17,600 17,650 this week. तो इस coming week में we can see Nifty showing some upside and Bank Nifty also showing some very good upside, which will be more than Nifty. तो Bank Nifty ज्यादा पॉजिटिव लगती है. So let's talk about Bank Nifty now. कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है अपने को. बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट आ गया था एंड उसके बाद कंसोलिडेट हुआ है मार्केट. तो इफ टुमारो वी आर एबल टू टेक आउट दिस लेवल, 15 मिनट में बताता हूँ आपको. if tomorrow we are able to take out this level, ठीक है, which we will easily take out if the market opens flat, क्योंकि closing काफी पास में है रेजिस्टेंस के. अगर फ्लैट खुलता है तो easily bulls will take out the high of Friday and then we will move towards the target of 35,700. तो यहाँ पे एक सीधा सीधा 100 पॉइंट्स का टारगेट तो अचीव हो जाएगा बैंक निफ्टी में. एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये आएगी. इफ वी आर एबल टू टेक आउट दिस रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है एक फ्लैट ओपनिंग में, आपको बता देता हूँ. We will break this level, then we will take a resistance at 35,700 or maybe 35,700 and round numbers. Okay, तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे. अगर पुल बैक आता है और अगेन एक ब्रेकआउट आता है, देन जस्ट थिंक नथिंग, अपना प्लान फॉलो करना है. 20 EMA का लेवल भी, उसके भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू कर देती है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बाय बैंक निफ्टी एंड वेट फॉर द टारगेट्स. ओके, और निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं, देन निफ्टी भी पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी इज बेटर एंड आई विल बी फोकस्ड ऑन बैंक निफ्टी. निफ्टी इज आल्सो सिंपल. निफ्टी में भी अगर ये डे हाई टूटता है कल 17,400 का, which we expect will be broken if market opens flat, then definitely we can trail the trade, trail our longs. First target 17,500 easily आपको मिल सकता है इंट्राडे में. And
मे बी अगर इंट्रा डे में भी अपन 17,600 नहीं जा पाते, देन ऑन ट्यूसडे वी अचीव द टारगेट ऑफ 17,600 एज वेल. Now everything is looking fine at the moment for the markets. Bus market should open flat, slight gap down or slight gap up. Everything is positive in that way. अगर बहुत बड़ा gap up हो जाता है, then आपको बैंक निफ्टी में ये देखना चाहिए कि कहाँ गैप अप हो रहा है. 35,700 के भी ऊपर हो रहा है या फिर इसके थोड़ा सा नीचे हो रहा है. अगर नीचे हो रहा है तो लेट मार्केट स्पेंड सम टाइम और देन ब्रेकआउट देने देना, उसके बाद भी अपन लॉन्ग जा सकते हैं. अगर एक बहुत ही बड़ा गैप अप निफ्टी में हो रहा है, then what we can do is we have to wait patiently. और जो डायरेक्शन गैप अप के बाद या बहुत बड़े गैप अप के बाद बन रहा है, जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको सिखाई है कि अगर आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज मार्केट खुलता है, फर्स्ट कैंडल रेड होती है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है, और जो सिनेरियोज मैंने आपको समझाया बुल ट्रैप, बियर ट्रैप सेटअप्स, उस हिसाब से भी ट्रेड्स मिल सकती है. तो अगर we are opening flat, agar we are opening a small gap up, a small gap down, in all the cases we expect the bulls to take control on the market. Reason is ki bank nifty has closed above 9 EMA at the recent low. Nifty has also closed above its 50 EMA, which is a midterm trend for the markets. So both sides we are seeing some good positivity, and jo positivity apne ko टेक्निकल्स पे दिख रही है, प्राइस एक्शन पे दिख रही है, वही पॉजिटिविटी वी आर सीइंग इन द डेटा एज वेल. So because both the things are supporting it, data as well as price action, we think that the bulls will be able to take control on the markets. And a flat opening में we have to just not think a lot and सीधा मेरे हिसाब से what will happen is कि अगर market flat खुलेगा, it will clearly take out the levels of Friday and we will give breakout and then start to make fresh highs. Okay. तो मेन फोकस यू हैव टू कीप ऑन बैंक निफ्टी. रीजंस आई हैव टोल्ड यू कि वो रीसेंट लो के ऊपर बंद हो रही है, 9 EMA के ऊपर है. अब नेक्स्ट लेवल्स टू बी अचीव दैट 20 EMA, 50 EMA, which we will clearly achieve one by one. अगर एक के ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो it will be better. So now this was about this video. I hope कि इस detailed explanation से I am able to help you out how to make planned ट्रेडिंग कैसे होती है, प्लान कैसे बनाते हैं मार्केट में, हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, एंड कैसे आप अपने प्लान पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं व्हेन यू नो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर कमिंग इन, लाइक द डेटा, लाइक प्राइस एक्शन. जो भी हिस्ट्री में चार्ट्स ने किया है वो वापस से अगर आपको दिखा रहे हैं वैसा कुछ होने वाला है, यू हैव टू ट्रेड दैट कन्विक्शन, एंड दिस इज हाउ यू मेक बिग मनी इन ट्रेडिंग. और इस वीडियो में मैंने आपको bear trap का setup भी समझाया. Let me know if you are able to understand both now, bear trap and bull trap. Okay, please give me some ideas for जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जो भी आपको समझना चाहते हैं, कुछ कंसेप्ट्स ईएमए के इससे रिलेटेड हो, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो, लेट मी नो अबाउट दैट. वन बाय वन आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन माय वीडियोस. एंड जो डेली वीडियोस में बनाता हूँ उसमें भी एक एक करके एक कंसेप्ट समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको भी ईएमए का समझाया एंड मैंने आपको बियर ट्रैप, बुल ट्रैप समझाया, उसी वे में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन those concepts which you want. Okay, so thank you, and now we have to work on the goal of 1,000 subscribers. Also let me know about your trading goals for 2022 ताकि अपन उस पे भी काम कर पाए, and I will help you achieve those goals. So thank you guys, have a good night.